Hello students, in this lecture we will see the construction of the transistor and the symbols of the transistor. So you are aware of that thing that the transistor is made up of three terminals. ये मैंने last lecture में cover किया है and those terminals are known as collector, base and emitter. Now how to construct the transistor? So for that purpose you should know the basic of PN junction. So you have a P type of material. In semiconductor, how to form a P type of material? So you take silicon material, intrinsic semiconductor, and then you add trivalent impurity over here. ये ध्यान में रखिए, अगर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया जाता है, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मींस एल्यूमिनियम, देन यू गेट पी टाइप ऑफ मटेरियल. पी टाइप ऑफ मटेरियल मतलब उसमें होल्स होने चाहिए. सो व्हाट विल हैपन? The deficiency of electron will be there because aluminum contains 3 electrons in the outermost shell, and then you can show that abundance of holes is there. So ये इसमें holes है. So ये P type of material आ गया है. And now how to construct the N type of material in semiconductor? So you take silicon material, intrinsic semiconductor, and dope it with pentavalent impurity. Pentavalent impurity मतलब phosphorus. So additional उसमें 5 electrons रहते हैं outer most shell में, and then naturally you will have electrons over here more abundantly over in this structure. So ये हो गया N type of material. N type के material में electrons रहते हैं. Now आपको इधर 3 टर्मिनल चाहिए. So what you have to do? You have to place any one of the material, any one type of material between these two one. So naturally इसमें दो टाइप के ट्रांजिस्टर हो जाएंगे. So if you place a P type of material or P type of material when it is sandwich between, sandwich बोलते हैं इसको, इधर उन्होंने place between लिखा है. When P type of material is placed between two N type of material, then it is known as your NPN ट्रांजिस्टर. तो ये N टाइप ऑफ मटेरियल, ये P और N. पर्पस भी देखिए, ये इधर डिफरेंट डायमेंशंस के एरिया बनाए हैं and different dimensions has been chosen so that one can easily identify. Rather construction wise भी वैसे ही रहता है. So the area of the base is least, then you will have a bigger emitter and the largest one is collector. So ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका एमिटर और ये हो गया आपका कलेक्टर. So जैसे NPN ट्रांजिस्टर फॉर्म किया जाता है वैसे ही आप PNP ट्रांजिस्टर भी बना सकते हैं, where the center one or the thinner one will be the base which is made up of N type of material and then 2 P type of materials on the either side. So ये हो गया construction. Now next one is about the symbol. ये देखिए इधर एमिटर का ये एरिया है, कलेक्टर इज द बिगेस्ट वन एंड बेस इज द थिनर वन. सो अभी सिंबल कैसे बनाने का है तो ये ध्यान में रखिए. NPN तो मैं एक इधर आपको लिख के देता हूँ. N का मीनिंग है नॉट, P का मीनिंग है पॉइंटिंग और N का मीनिंग है इनसाइड. ये एक्चुअली इसका मीनिंग नहीं है लेकिन आप इसे ध्यान में रख सकते हैं. नॉट पॉइंटिंग इनसाइड, इसका क्या मीनिंग है? तो सिंबल बनाते समय क्या हो जाएगा, आपको इधर ये बेस बनाने का है. देन यू ड्रॉ वर्टिकल लाइन and then these two lines like this one. ये purposely इसके थोड़ा अंदर से ही चालू हो जाती है लाइन. And then you will have these two terminals. So ये मैंने इधर बना दिया है. So you will have collector, you will have base and emitter. Now one can argue like this one कि अरे ये collector और emitter कैसे identify किया जाता है. So always we are going to put arrow on emitter terminal. So arrow अभी हमेशा emitter terminal पे रहेगा. अभी किधर रहेगा? So इधर देखिए NPN और मैंने आपको लिख के दिया not pointing inside. That means pointing outside. So arrow आपके emitter पे place करने का है but it will be direction will be outside. And this indicates the flow of conventional current. So ये emitter current ऐसे flow हो जाएगा इधर, ये वो बता रहा है. ओके, सो सिंबल मैंने बना दिया है. ये है कौन सा आपका NPN ट्रांजिस्टर का, जिसमें कलेक्टर N टाइप है, बेस P टाइप है और एमिटर N टाइप है. नाउ यू हैव टू ड्रॉ द सिंबल ऑफ PNP ट्रांजिस्टर. सो यू विल हैव बेस ओवर हियर, then these two lines over here and then these two lines over here and then you can assign collector, base and emitter over here. ये ऐसा नहीं कि यही बेस है, आपको हमेशा कलेक्टर इधर ही दिखाने का है. You can extend this one, लेकिन आपको एरो हमेशा एमिटर पे ही ड्रॉ करने का है. So अभी आपको एरो किधर रहेगा? PN. So that means pointing inside. Pointing inside मतलब क्या? एरो रहेगा एमिटर पे ही बट वो इनसाइड रहेगा. सो इधर आपको ये एरो डायरेक्शन ऐसे मार्क करने का है, इधर नहीं मार्क करने का है. PNP ट्रांजिस्टर में एरो डायरेक्शन हमेशा ये अंदर के साइड रहता है. ओके, इवन यू कैन ड्रॉ ट्रांजिस्टर लाइक दिस वन कि ये ऐसा आपने बना दिया,
ये सपोज आपने इधर एमीटर बनाया है, इधर बेस और इधर कलेक्टर, देन यू हैव टू ड्रॉ एरो ओवर हियर. Okay, this is the symbol of PNP transistor which is same as this one. एंड जिधर भी एरो है वो आपका एमीटर टर्मिनल हो जाता है. ये वाइवा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है. अभी ये एरिया वाइज तो हम लोग ने देख लिया है. एरिया वाइज लार्जेस्ट एरिया रहता है आपका कलेक्टर का. कलेक्टर का लार्जेस्ट एरिया क्यों रहता है? क्योंकि जो मेजॉरिटी कैरियर्स रहते हैं वो सब कलेक्टर में आ जाते हैं. दैट मीन्स एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सब कलेक्टर में आ जाएंगे, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल्स जब भी है, जब भी ट्रांजिस्टर आप वर्किंग उसका देखोगे तभी आप देखोगे, सो होल्स सब कलेक्टर में आ जाएंगे. नाउ a heat will get developed in this area, and to dissipate the heat to the surrounding, naturally the area of that terminal should be more. So collector का area सबसे बड़ा रहेगा. Then the next one कौन आ जाता है? emitter, and the third one is your base. So base is the thinnest one. So ये हो गया area wise. Okay, now we'll see the doping profile in each of these area. Doping profile means what? The amount of charge carrier available in each of the region. ओके, सो डोपिंग प्रोफाइल में सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें किया जाता है? एमीटर. डोपिंग मतलब क्या? डोपिंग मतलब एडिंग इम्प्यूरिटी. एडिंग इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी किसको बोलते हैं? तो हम लोग ने देखा है कि पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट, ये जो आप ऐड करते हैं इसको बोलते हैं इम्प्यूरिटी. सो अगर इम्प्यूरिटी ज्यादा है देन व्हाट विल हैपन? मोर नंबर ऑफ कैरियर्स विल बी प्रेजेंट. अभी आप देखिए, अगर आप एमीटर है, सो एमीटर विल either emit electron in case of NPN transistor or holes in case of PNP transistor. So अगर वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहे हैं, सो नेचुरली उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. सो एमीटर में डोपिंग प्रोफाइल यानी इम्प्यूरिटी सबसे हाईएस्ट रहते हैं. द सेकेंड वन इज कलेक्टर एंड द थर्ड वन इज बेस. सो इसमें भी बेस किधर आ गया? लोएस्ट ऑर्डर पे आ गया. सो बेस का एरिया सबसे कम रहता है एंड इसका डोपिंग प्रोफाइल भी कम रहता है. इन केस ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर बेस कौन सा टाइप का है? पी टाइप मटेरियल है, और इन केस ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर बेस कौन सा रहेगा? आपका एन टाइप का रहेगा. ओके, सो आई हैव डिस्कस दिस टू. तो एमिटर का ये डोपिंग प्रोफाइल ज्यादा क्यों है? बिकॉज इट हैज टू एमिट द इलेक्ट्रॉन्स. बेस का डोपिंग प्रोफाइल कम क्यों है? सो दैट we will see when we'll see the working of the transistor, you will come to know कि बेस का डोपिंग प्रोफाइल सबसे कम क्यों रखते हैं. So that is all about in this lecture. We have discussed the doping profile, area and the construction of the transistor and also the symbol. ये NPN का symbol है, not pointing inside. ये उसका full form नहीं है. ये N type, P type और N type of material है. लेकिन ये ध्यान में रखने के लिए मैंने ये इधर एक जिंगल्स डेवलप किया है, नॉट पॉइंटिंग इनसाइड, और इधर है पॉइंटिंग इनसाइड. ओके, थैंक यू.